ایک معصوم یتیم لڑکی جس کی دنیا اپنوں کے جانے کے بعد اجڑ چکی تھی، اور ایک خوددار قد مرد جو عمر کے بڑے فرق کی وجہ سے اس رشتے سے دور بھاگ رہا تھا۔ مگر جب تقدیر نے ان دونوں کے دلوں میں خاموشی سے محبت کا بیج بویا تو زندگی نے ان کے لیے ایک ایسا خوبصورت موڑ لیا جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آئیے سنتے ہیں ایک بے حد جذباتی اور دل کو چھو لینے والی کہانی۔ سکینہ ماما کہاں ہیں؟ لاؤنج میں صفائی میں مصروف ملازمہ سے اس نے پوچھا۔ صاحب جی وہ مارکیٹ گئی ہیں، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ صفائی کا کام روکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے کف لنکس کھولتا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سکینہ نے دل ہی دل میں اپنے ماموں کی شخصیت کو سراہا جو اتنی ڈیشنگ تھی کہ وہ جب بھی انہیں دیکھتی اس کا معصوم دل دھڑک اٹھتا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے کندھے پر رکھا کوٹ سامنے میز پر پھینک دیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو مغرب کی اذان ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ جوتے موزے اتارنے کے بعد وہ وارڈ روم سے استری شدہ شلوار سوٹ نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ قریبی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا۔ حوصلہ کرو علینا بیٹی، اللہ کی مرضی کے آگے بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ دکھ تکلیف تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، اور تم تو میری بہت بہادر بیٹی ہو۔ زینب بیگم نے اس ٹوٹی بکھری لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینی چاہی، مگر وہ ان کی تسلی پا کر مزید بکھر گئی۔ وہ ان کی کمزور باہوں کے گھیرے میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ اللہ میری بیٹی کو صبر دے۔ اسے سنبھالتے ہوئے ہلکان ہوتی ہوئی وہ بیگم بھی رو پڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا زینب بوا، صبر بہت بڑی چیز ہے جس پر زندگی قائم رہ سکتی ہے، مگر میں بہت کمزور ہوں، میں کیسے صبر کروں؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میرا کچھ نہ بچا، دیکھو میرے ہاتھ خالی رہ گئے۔ اس نے بلکتے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیاں ان کے سامنے کر دیں۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر زینب بیگم کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری دنیا اجڑ گئی بوا، اور آپ کہتی ہیں کہ ایسے نہیں کہتے۔ میں کیوں زندہ بچ گئی؟ کیوں اس گاڑی میں اپنے پیاروں کے ساتھ ہی نہ مر گئی؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کیوں مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے؟ پاپا مجھے کتنا پیار کرتے تھے، میری ذرا سی تکلیف پر کس طرح تڑپ اٹھتے تھے، زمانے کے سرد و گرم سے مجھے کتنا بچا کر رکھتے تھے، میری اور ماما کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی انہیں، وہ ہمیشہ میرے کھانے پینے کے پیچھے کھڑی رہتی تھیں، اور اب میں کئی کئی دن بھوکی رہتی ہوں۔ وہ مجھے کھانے کے لیے کیوں نہیں کہتی؟ کیوں میری فکر نہیں کرتی؟ وہ بری طرح ہچکیاں لے رہی تھی۔ اور میرا وہ چھوٹا بھائی، وہ کتنا چھوٹا تھا، کتنی جلدی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب کون مجھے اپنی معصوم زبان سے علینا آپی کہے گا؟ کون اپنی معصوم شرارتوں سے میرا دل بہلائے گا؟ کتنے بے وفا ہیں نا سب، مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے کہیں نا بوا کہ وہ میرے پاس آ جائیں، یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ مجھے ان کے بغیر رہنا نہیں آتا، پلیز بوا آپ کہیے نا۔ درد کی شدت تھی یا نفسیاتی دباؤ، وہ آہستہ سے بے ہوش ہو کر ان کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ اسے اپنی باہوں میں بے جان ہو کر دیکھ کر زینب بیگم کا کمزور وجود کچھ اور کمزور پڑ گیا۔ انہوں نے بہتی آنکھوں اور کانپتے ہونٹوں سے اپنے ملازموں کو آواز دی۔ زینب بیگم کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی اندر سے بے حد کمزور ہو چکی تھی، ان کی حالت دیکھ کر علینا جہاں بے حد پریشان ہوئی، وہیں خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس اتنی بڑی دنیا میں زینب بیگم کے سوا اس کا تھا ہی کون؟ جو رشتے میں تو اس کے پاپا کی کزن تھی، مگر اب وہی اس کا سب کچھ تھیں۔ اگر زینب بوا کو کچھ بھی ہو گیا تو اس سوچ اور ڈر نے جیسے اس کے پورے جسم سے جان نکال دی تھی۔
12 घंटे की तावील बेहोशी के बाद जैसे ही इन्हें होश आया, अलीना की जान में जान आई, वरना वो बुखलाई हुई अस्पताल के कॉरिडोर में टहलती हुई मुसलसल एक ही दुआ कर रही थी, अल्लाह जी बुआ को कुछ ना हो। इनका कमज़ोर वजूद ही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। इनके वजूद के साए तले छुप कर ही तो वो ज़िंदगी के दिन गुजार पा रही थी, वरना मम्मी पापा के जाने के बाद इसका ज़िंदा रहना नामुमकिन हो जाता। ज़ैनब बेगम के अस्पताल से घर आते ही वो अपना गम भुलाकर इनकी तीमारदारी में मसरूफ़ हो गई। वो इस वक्त एक ऐसी उदास सी बच्ची थी जिसके हाथ में ज़िंदगी की कठिन राहों में चलने के लिए सिर्फ ज़ैनब बेगम का हाथ था। वह इस खौफ से कांपती कि अगर कभी ज़ैनब बुआ का हाथ छूट गया तो वो दुनिया के मेले में ऐसे गुम हो जाएगी कि फिर शायद अपनी भी ना रहे। ये ऐसा डर था जो कुंडली मारे किसी अजदहे की तरह फन फलाए इसके अंदर छुपा बैठा था, और जिससे चाहकर भी वो जान नहीं छुड़ा पा रही थी। बुआ, माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। आप जानती हैं ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। रात इनकी टांगें दबाते हुए अलीना ने भीगे लहजे में कहा। ज़ैनब बेगम की पुरसोच नज़रें इसके मासूम चेहरे पर जम गईं। अलीना, ज़रा मेरा फ़ोन तो मेरे पास लाओ। यकलख्त इनके कहने पर वो ताबेदारी से साइड टेबल की तरफ बढ़ गई। ये साथ वाली दराज में नीले रंग की डायरी है, वो भी पकड़ा दो, और मेरा चश्मा भी। इसने डायरी और चश्मा ला कर दिया। उन्होंने चश्मा लगाया और नंबर मिलाने से पहले एक दफ़ा फिर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। और तुम जाकर चाय ले आओ। जी अच्छा। वो उजलत में कमरे से बाहर निकल गई, मगर फिर जब चाय लेकर कमरे में आई तो इन्हें किसी गहरी सोच में डूबा पाया। बुआ माँ इसके 2-3 बार आवाज़ें देने पर उन्होंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये चाय चाय ले आई? हाँ, रख दो, अभी ज़रूरत नहीं है। मगर वो अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि उन्होंने बात काट दी। मैं पी लेती हूँ बेटा, तुम परेशान ना हो। अलीना ने ताज्जुब से इनके उलझे हुए अंदाज को देखा और फिर इनके करीब बैठकर एक बार फिर इनकी टांगें दबाने लगी। दूसरे दिन वो लॉन में बैठी थी जब इसने एक ग्रेसफुल सी खातून को गेट से दाखिल होकर अपनी तरफ आते देखा। इनकी शख्सियत ऐसी पुरकशिश थी कि वो बेइख्तियार उठ खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मुझे ज़ैनब बेगम से मिलना है। इनके बोलने का अंदाज इनके चेहरे से भी ज़्यादा पुरकशिश था। अलीना हैरानी से इनको देखती रह गई। आइए प्लीज़, मैं आपको बुआ के कमरे में छोड़ आती हूँ। सलाम का जवाब देते हुए इन्हें साथ लिए वो ज़ैनब बेगम के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। आप ज़ैनब की भांजी हैं ना? रास्ते में उन्होंने पूछा। अलीना ने आहिस्ता से सर हिला दिया। जिसने इस खातून की आंखों में एक चमक देखा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो बेटा, अल्लाह नसीब अच्छा करे। ना चाहने के बावजूद भी अलीना के गाल सुर्ख पड़ गए। अपनी तारीफ भला किसे बुरी लगती है। इन्हें कमरे में छोड़कर वो किचन में आ गई। कुछ देर बाद वो चाय लेकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, ज़ैनब बेगम की बात ने इसे ठटक कर वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है फहमीदा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं अपनी बेटी को एक मजबूत सहारा देकर मरना चाहती हूँ, जो इसके साथ मुखलिस हो, इसका एहसास करे और इसका ख्याल रखे। वो बहुत बिखर गई है, कोई इसे समेट ले। और शियान बेटे को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसकी तबीयत बहुत अच्छी है, मगर फिर भी मैं चाहूँगी कि तुम एक बार इससे मिल लो। मैंने इसे देखा हुआ है फहमीदा, तुम फिक्र न करो। लेकिन क्या अलीना मान जाएगी? आखिर उम्र का भी तो फ़र्क है। एक खदशे के तहत आंटी फहमीदा ने ज़ैनब बेगम से पूछा। वो मेरी बड़ी समझदार बेटी है, मुझे इस पर बड़ा भरोसा और मान है, और मुझे यकीन है कि वो अपनी बुआ को कभी इनकार नहीं करेगी। तुम बस तैयारी कर लो। फिर उन्होंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अरे अलीना बेटा, अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? इनकी नज़रें इसके बुत बने खड़े वजूद पर पड़ी थीं। वो छोटे छोटे कदम उठाती इनकी तरफ आई। चाय की ट्रे साइड टेबल पर रखते ही वो जाने लगी। जब इस ग्रेसफुल खातून ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने करीब बिठा लिया। ये मेरी सहेली फहमीदा है।
पहले अमेरिका में रहती थीं, अब कुछ अरसे से अपने बेटे शियान के साथ मुस्तकिल पाकिस्तान आ गई हैं। ज़ैनब बेगम के तारुफ करवाने पर भी इसका झुका हुआ सर नहीं उठा था। इसका दिमाग तो अभी थोड़ी देर पहले सुनी जाने वाली अधूरी गुफ्तगू में ही उलझा हुआ था। मैंने अपने बेटे शियान के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? इसने एक झटके से सर उठाकर ज़ैनब बेगम की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी यकीनी थी, और फिर ज़ैनब बेगम की मान भरी नज़रों को देखते हुए इसने बामुश्किल अपना झुका हुआ सर हिलाया। ज़ैनब बेगम ने इसे रजामंदी समझते हुए फहमीदा बेगम से कहा, मैं न कहती थी कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इनके पूरे एतमाद भरे लहजे पर इसने खामोशी इख्तियार कर ली। वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर वो इस वक्त कुछ भी कह नहीं पा रही थी। अपनी बीमार बुआ का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वो रात को इनसे तफसील से बात करने का अंदर ही अंदर ठान चुकी थी, मगर ये क्या? ज़ैनब बेगम का हौसला अफजा अशारे पाते ही आंटी फहमीदा ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और इसकी नाजुक सी अंगूठी में पहना दी। अभी तो यही अंगूठी पहना रही हूँ, मगर इंशाअल्लाह शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अभी ये शियान की तरफ से तुम्हारी इमानत है। उन्होंने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा। अलीना को इनकी आवाज़ भारी सी लगी। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कर सकी, बस हक्का बक्का देखती रह गई। इसे अपने अंदर एक खालीपन उतरता हुआ महसूस हुआ। होंठ खामोश थे, मगर दिल में एक अजीब तड़प और दुख का एहसास था। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो भला शादी के हवाले से किस तरह सोच सकती थी? ये क्या किया आपने? मैं अभी किस तरह शादी कर सकती हूँ? रात वो नाराज ही कह रही थी, जब ज़ैनब बेगम ने उदासी से इसे देखा। क्यों? तुम शादी क्यों नहीं कर सकती? काफ़ी देर बाद उन्होंने पूछा था। माया, मेरे ज़ख्म अभी ताज़ा हैं, और फिर मेरी उम्र, मेरी अधूरी तालीम, मेरा दिल अभी तैयार नहीं है। इसलिए इस रिश्ते के लिए इतना बड़ा फैसला करने से पहले आपको मुझसे ज़रूर पूछना चाहिए था। वह आखिरी जुमला बोली तो ज़ैनब बेगम ने अफसरदा होकर इसकी तरफ देखा। क्या पूछती मैं तुमसे कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और मैं तुम्हें अकेला किसके सहारे छोड़कर जाऊं? क्या तुम अकेली इस जालिम दुनिया का मुकाबला कर सकोगी? तुम्हारी उम्र बढ़ने तक और तालीम मुकम्मल होने तक क्या तुम्हारी ये बुआ जिंदा रहेगी? मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ गई तो मरने के बाद भी मेरी रूह बेचैन रहेगी। क्या मुंह दिखाऊंगी तुम्हारे मामा पापा को? क्या जवाब दूंगी इनके सवालों का जब वो पूछेंगे कि इनकी लाडली को मैं किसके सहारे छोड़कर आई हूँ? ज़ैनब बेगम दुख से भरी आवाज़ में रोते हुए बोली, तो वो भी इनके करीब आकर बिलक बिलक कर रो दी। ज़ैनब बेगम ने आहिस्ता से इसे अपने साथ लगा लिया, और फिर वही हुआ जिसका इसे डर था। रात बुआ सोई तो सुबह उठ न सकीं। वो हैरत से बुत बनी कितनी देर बेयकीनी से इनके बेजान वजूद को देखती रह गईं। बुआ माँ के जाने के बाद अब मेरा क्या होगा? इस खौफ ने इसे इतना हरासा किया कि इसके आंसू भी जैसे मुंजमद हो गए। घबराहट, बौखलाहट और बेबसी और लाचारी से इसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। जहां वो बेहद सहम गई थी, वहीं इसके इर्द गिर्द का माहौल एक गहरे सन्नाटे की लपेट में आने लगा था। वो अकेली किस तरह ज़ैनब बेगम को इनकी आखिरी आराम गाह तक पहुंचा सकती थी? वो बाहर निकलकर चीखने चिल्लाने लगी, या फिर हमसायों को मदद के लिए पुकारे। सही मायनों में वो अब तन्हा हुई थी। डूबते को तिनके का सहारा। इसे यकलख्त आंटी फहमीदा का ख्याल आया तो वो तेज़ी से ज़ैनब बेगम के नीले रंग की डायरी की तरफ बढ़ी और इनका नंबर मिलाने लगी। फ़ोन किसी मर्द ने उठाया था। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान ज़ैनब बेगम के बारे में बताने लगी। 20 मिनट के बाद आंटी फहमीदा एक 31 साल दराज का नौजवान के साथ अंदर दाखिल हुई। आंटी, मेरी बुआ! वो भागते हुए इनकी तरफ बढ़ी और इनके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो दी। शयान जहांगीर ने अपनी मामा की बाहों में रोती बिलकती छोटी सी लड़की को हैरत से देखा था, जिस बात की तरफ इसका दिमाग इशारा कर रहा था। दिल इसे मानने से कासिर था। मम्मा, ये आपने क्या किया? घर वापस आकर शयान ने पूछा। क्यों, क्या हुआ? इनके ताज्जुब पर वो बड़ी संजीदगी से बोला, जब से मैंने अलीना को देखा है मैं बेचैन सा हो गया हूँ।
मेरी और इसकी उम्र में कितना बड़ा फ़र्क है, देखा है आपने। मैंने इस बारे में ज़ैनब से बात की थी, मगर जब इसे कोई एतराज़ नहीं था तो फिर मैं किस तरह एतराज़ करती। ये सरासर गलत है मम्मा। वो मासूम सी बच्ची है और मैं वो बेहद संजीदा हो चुका था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। शयान, जब अलीना को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और मर्द चाहे जितना भी बड़ा हो, एक वक्त आता है जब औरत इसकी हम उम्र नज़र आने लगती है। उन्होंने जैसे अपनी तरफ से बात ख़त्म करना चाही। ये ठीक नहीं है मम्मा, और इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए। 12-13 साल का फ़र्क कोई कम नहीं होता। कोई भी फैसला करने से पहले ये सोच लेना शयान कि अब वो तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी इज्जत है, और अब इस भरी दुनिया में अल्लाह के बाद तुम्हारे सिवा इसका कोई सहारा नहीं है। बेटे के तेवर देखते हुए उन्होंने भी बड़ी संजीदा होना पड़ा। मगर मम्मा, कोई अगर मगर नहीं। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है या इसमें कोई खामी है तो तुम्हारा इनकार बनता है, लेकिन अगर तुम महज उम्र के फ़र्क को मद्देनज़र रखकर इस मासूम यतीम बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो ये ठीक नहीं होगा, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई तो शियान ने मुज़तरब होकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। अलीना को आंटी फहमीदा का बहुत सहारा था। ज़ैनब बेगम की दूरअंदेशी और बारीक बीनी का इसे अब एहसास हो रहा था कि अगर इस मुश्किल वक्त में आंटी फहमीदा का आसरा ना होता तो वो वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाती। इसने अभी नमाज अदा की थी कि मुलाजमा ने इसे शियान जहांगीर के आने की इतला दी। वो आहिस्ता से सर हिलाकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। दिल किसी अनोखी खुशी के लिए नहीं धड़क रहा था, मगर ये भी हकीकत थी कि वो इसकी आखिरी उम्मीद था। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इसने सलाम किया। वो जो अपनी सोचों में गुम थी चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। सफ़ेद दुपट्टे को नकाब की सूरत लपेटते इसके मासूम चेहरे पर जैसे इसकी नज़रें जम कर रह गईं, मगर इसने अपनी नज़रों का एक लम्हा भी ज़ाया ना होने दिया। इन नरगसी आँखों की वीरानी ने शियान को बेहद उदास कर दिया था। क्या लेंगी आप, चाय या खामोशी? जब तूल पकड़ने लगी तो घबरा कर अलीना को बोलना पड़ा, कुछ नहीं, असल में मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। अलीना, क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? इसकी गहरी नज़रें इसके चेहरे पर जमी हुई थीं। वो सर झुकाए जैसे अपने अंदर झांक रही थी। अब इसे कैसे बताती कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर ये रिश्ता इसकी वाह ज़रूरत बन गया है। अकेले हो जाने के खौफ ने इसे इस कदर हरासा कर दिया है कि इसे इस रिश्ते के लिए अब खुद को राज़ी करना ही पड़ेगा। लगता है कि मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। वो इसके चेहरे का बहुत गौर से जायज़ा लेते हुए बोला, जबकि घबराते हुए अलीना के मुंह से बेख्तियार निकला, जी नहीं। वो तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ऊपर से इसकी गहरी नज़र। वो घबरा ना जाती तो क्या करती। बौखलाहट ऐसी थी कि कुछ भी ठीक से कह ना पाई। जबकि वो कह रहा था, मेरे लिए जी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या महसूस करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस रिश्ते को हमारे बड़ों ने जोड़ा है, मगर ये भी सच है कि इसे निभाना हम दोनों को है। इसलिए आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। प्लीज़ मुझे बताएं। इसके लहजे में ऐसी आजिज़ी थी कि अलीना को बोलना ही पड़ा। मुझसे पूछकर ही बुआ ने आंटी फहमीदा को हाँ की थी। वो मध्यम सी आवाज़ में बोली। शाह जहांगीर की नज़र जैसे इसकी भीगी पलकों और सुर्खी माइल होंठों पर ठहर गई। बेशक वो बहुत हसीन थी। अगर दरमियान में ये उम्र का फ़र्क ना होता तो इस वक्त वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वर कर रहा होता। मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं? जी, इतनी ज़्यादा उम्र का फ़र्क होने के बावजूद भी नहीं। वो न जाने क्यों मायूस हो रहा था, इसलिए कुरेद कुरेद कर पूछ रहा था। अलीना ने आहिस्ता से पलकें उठाईं। इसकी पलकों की नमी शियान के दिल को छू गई थी। अलीना, प्लीज़ जो भी आपके दिल में है मुझे बता दीजिए। यकीन करें, इससे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, एक बार कहकर तो देखें। यकलक वो बेचैन हो गया था, जबकि वो खुश्क होंठों पर ज़बान फेर कर रह गई थी, और इसके इस उलझते हुए लहजे ने शियान जहांगीर को मज़ीद तशवीश में मुबतला कर दिया था।
तो मेरा शक दुरुस्त है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। वो बहुत संजीदगी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी तेज़ी से उठी। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। कुछ तो ज़रूर था इसकी आंखों में। श्याम जहांगीर थोड़ा सा ठटका। मुझे आपसे शादी पर कोई एतराज़ नहीं, मगर मोटी मोटी आंखों में जैसे कोई हसरत, कोई इंतज़ार या फिर कोई गुजारिश थी, मगर इसकी संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, कुछ नहीं। वो बेबसी से आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला गई। रुखसारों पर बहते हुए आंसू और खामोशी के दरमियान श्याम जहांगीर का दिल बैठ गया। वो एक आखिरी नज़र इस पर डालकर खामोशी से लंबे लंबे कदम बढ़ता हुआ गेट की तरफ बढ़ गया, जबकि वो पुकारती हुई इसके पीछे भागी, मगर वो सुनी अनसुनी करता हुआ गाड़ी निकाल कर चला गया और वो सड़क पर वहीं बैठकर रोने लगी। लेकिन अगर अब वो ये रिश्ता तोड़ देगा तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तेज़ी से उठी और मोबाइल पर इसका नंबर मिलाने लगी जो आंटी फहमीदा ने इसे दिया था। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। प्लीज़ श्यान वापस आएँ, मुझे आपसे बात करनी है। आप जो पूछेंगे इसका जवाब बिल्कुल सच सच दूंगी। प्लीज़ यूँ नाराज़ होकर ना जाएं। वो रोते हुए कह रही थी। दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी और वो घुटनों में सर दिए कर फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी देर के बाद एक आहट के एहसास पर इसने सर उठाया। श्याम को दोबारा अपने सामने पाकर इसके अंदर एक अजीब सा सुकून जगा। भीगी पलकों और खुश्क होंठों ने श्याम जहांगीर को लम्हों में मशहूर कर दिया था और मोहब्बत बहुत ही खामोशी के साथ इनके दिलों में समा गई थी। दरअसल मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं इतने अरसे अकेली नहीं रह सकती, मुझे सहारे की ज़रूरत रहेगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अपनी परेशानी कैसे बताऊँ। मेरे ज़ख्म अभी ताज़ा हैं। उम्र के लिहाज से भी मेरे लिए इस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए और कोई वजह नहीं। वो पलके झुकाए बोली। श्याम जहांगीर के चेहरे पर तनी हुई संजीदगी की जगह नरमी छाने लगी। बस यही वजह थी जी। इसकी मासूमियत ने श्याम के दिल में इसकी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ा दिया। श्याम के चेहरे पर एक दिलनशी मुस्कुराहट आ गई। वो यकदम इसे अपनी अपनी सी लगने लगी। दिल इसकी तमाम मुसीबतों और तलखियों को खुद में जज़ब कर लेने को मचलने लगा। इत्मीनान का बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोला तो इसकी आवाज़ में बहुत नरमी थी। अलीना ने बेख्तियार पलकें उठाई और इससे पहले कि वो कुछ कहता, इसी पल आंटी फहमीदा ने अंदर कदम रखा और इन दोनों पर एक गहरी नज़र डालकर मुस्कुरा दी। वो श्याम जहांगीर को वहाँ देख कर हैरान भी हुई और खुश भी कि इसने अलीना की परेशानी का कितना अच्छा हल निकाल लिया था। एक सुहानी शाम अलीना का निकाह श्याम जहांगीर से हो गया। एक रिश्ते का मान लिए अलीना श्याम के घर दाखिल हुई थी, मगर श्याम ने रुखती इसकी तालीम मुकम्मल होने तक के लिए मुलतवी कर दी थी। श्याम जहांगीर के इस फैसले ने अलीना के दिल में इसकी इज्जत और बढ़ा दी थी। निकाह होते ही इसने बाकी लड़कियों की तरह इसे अपना सब कुछ मान लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इसे श्याम की कुर्बत हासिल होती गई और इसे अपने शोहर पर फख्र होता गया। अब इसकी सहेलियों को इसकी किस्मत पर रश्क होता था। शान इसकी ज़रा सी परेशानी पर जहां खुद परेशान हो जाता, वहीं अलीना की एक मुस्कुराहट इसे अंदर तक सुकून देती। इतनी मोहब्बत पर वो हैरान रह जाती। वो इसे किसी नाजुक आप गिने की तरह संभाल कर रखता था। वो अपनी हर ख्वाहिश पर अलीना की ख्वाहिश को तरजीह देता और बाज़ औक़ात तो अपनी बात पर इसकी बात को मानने से भी गुरेज नहीं करता था। कॉलेज ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी भी श्याम ने अपने सर ले रखी थी। इस मामले में वो भला किसी और पर भरोसा न करता। इतनी मोहब्बत पार कर अलीना की ज़िंदगी की उदासियाँ और वीरानियाँ ख़त्म हो गई थीं। यकीनन श्याम जहांगीर की वजह से कुदरत ने इसके तमाम दुखों का मुदावा कर दिया था। हर गुजरते दिन के साथ इनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती गई और अलीना वक्त के साथ साथ मज़ीद निखरती गई। एक दिन वो लॉन में बैठी थी जब श्याम ऑफिस से आते ही सीधा इनके पास चला आया। आज बहुत थक गया था, सारा दिन बहुत बिजी रहा। क्या हुआ? अलीना के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर जैसे वो अपनी सारी थकन बुला बैठा। नहीं, कुछ नहीं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। कुछ तो है, वरना तुम इतनी उदास नहीं होते। कुर्सी पर बैठते हुए इसने अलीना के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ तशवीश से देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं।
اس کی تھوڑی سی اداسی سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، اس لیے وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے مطمئن کرنے لگی۔ اوکے، اگر تم کہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا الینا، تمہارے چہرے پر ٹھہری مسکراہٹ میری ساری تھکن دور کر دیتی ہے، اور تمہارے چہرے پر چھائی اداسی مجھے کسی ناگوار الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آئی ایم سوری، بس ایسے ہی دل کچھ اداس سا ہو رہا تھا۔ الینا کو اس کی محبت کا پورا احساس تھا، اس لیے وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی، اوکے پھر چلو بھائی کہیں گھوم کر آتے ہیں۔ وہ جھکلک اٹھ کھڑا ہوا، نہیں رہنے دیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ مگر یارا، میری تھکن کا تو ایک ہی علاج ہے۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہاری مسکراہٹ اور شرماتی ہوئی آنکھیں۔ الینا سر جھکا کر ہنس دی۔ ویری گڈ، چل اب اچھے بچوں کی طرح بغیر کوئی سوال جواب کیے میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں بچی نہیں ہوں، نہ جانے پچھلے کچھ عرصے سے کیا ہوا تھا، وہ جب بھی اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تو وہ چڑ جاتی۔ اب اس کے ساتھ چلتی ہوئی وہ تیزی سے بولی۔ شیان نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ بیبی، پنک کلر کے سوٹ میں واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے لیے تو تم اب بھی بچی ہو نا۔ وہ اسے چڑھانے کو بولا تو وہ کھسیا گئی۔ میں واقعی اب بچی نہیں رہی، الینا نے لب دبا کر مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شیان جیسے انجان بن کر بولا، اچھا تو یہ بات ہے کہ اب میری بیوی بڑی ہو گئی ہے۔ اس نے گردن گھما کر بڑے شرارتی انداز سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے بدلے ہوئے انداز نے الینا کو فر بولتی زبان کو بریک لگا دی۔ وہ شرم سے خاموش ہو گئی۔ شیان نے اس کے تاثرات دیکھ کر آہستہ سے دھیمے لہجے میں کہا، واقعی اب تو آپ بڑی ہو گئی ہیں۔ جہاں جملہ مختصر تھا وہیں شیان کا لہجہ بھی بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ شرم سے لال ہو گئی تھیں۔ جب اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ آہستہ آہستہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اسے اندر ہی اندر ایک خوبصورت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مطمئن اور مسحور سی بیٹھی کھڑکی سے چاند کو تک رہی تھی، جب پیچھے سے سرسراہٹ محسوس کر کے پلٹی۔ شیان کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ اتنی دلکش تھی کہ اس نے الینا کی نظروں کو جکڑ لیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ تم روز بروز مزید خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ میں پہلے بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جناب۔ اس کی بات پر وہ نظروں سے نظریں چراتے ہوئے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھنے لگی، جبکہ شیان نے اس کے معصوم اور پرکشش چہرے پر سے ایک لمحے کو بھی نظر نہیں ہٹائی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھنے آیا تھا الینا، کیا یہی کہ اب مجھے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا، جبکہ تمہارا گریجویشن بھی اب مکمل ہو گیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے جیسے مکمل فرصت میں کھڑا تھا، جبکہ الینا کے دل کی دھڑکنیں سینے سے باہر آنے کو تیار تھیں۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے الینا؟ مجھے نہیں پتا۔ اس کی نظروں کی بے پناہ تپش نے اسے بہت نروس کر دیا تھا۔ کیوں نہیں تمہیں پتا؟ تمہاری اس ہاں کا انتظار کرتے کرتے میں اب تک کنوارا بیٹھا ہوں۔ ہمارے ساتھ کے لوگ تو آدھے شادی شدہ ہو چکے ہیں۔ اس کی زبان سے ایک دم پھسلا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے بے اختیار اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، جبکہ شیان جہانگیر نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیا اور گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اب پورا شادی شدہ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی رسیلی پلکوں کو اپنی نظروں کے گرفت میں لے کر وہ بولا، اس کے لہجے میں جہاں الینا کو بے پناہ محبت محسوس ہوئی وہیں ایک دیرینہ خواہش اور حسرت بھی تھی۔ میں عید کے فوراً بعد رخصتی چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اس کے ہاتھوں کو ہلکے سے دبایا۔ ایک وقت تھا جب اس نے الینا کی خواہش کا مان رکھا تھا اور آج الینا کی باری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اگر انتظار کرے گی تو وہ بھی کبھی زبردستی نہیں کرے گا، مگر اتنے عرصے میں وہ اسے اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ اس کی خوشی کے لیے شیان نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو دبایا تھا۔ وہ مذاق میں انکار کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج دل شیان کی خواہش پر اپنی ہر ضد قربان کرنے کو تیار تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں اور شیان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالتی ہوئی تھوڑا سا فاصلہ پیدا کر کے شرارت سے بولی، ایک شرط پر مانوں گی؟ کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ عید کی شاپنگ ساری میری پسند کی ہوگی۔ چلو منظور، اور کچھ؟ اچھا، وہ یہ کہ ہنی مون پر بھی میں اپنی پسند کی جگہ پر جاؤں گی۔ اور کوئی حکم میرے سرکار؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ الینا اس کی محبت بھری نظروں سے شرما کر فوراً اختیار کرتے ہوئے بہت تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔
मगर अगले ही पल इसकी नाजुक कलाई श्यान की मजबूत और गर्म गिरफ्त में आ गई। तुम सच कह रही हो ना? वाकई तुम्हें अब कोई एतराज़ नहीं? वो बेयकीनी और खुशी के मिले हुए जज्बात से बोला। जितना सच मैंने अभी कहा वो बिल्कुल सच है, अलीना ने धड़कते दिल के साथ कहा। और तुम्हारा एमए? एक खदशे के तहत इसने दोबारा पूछा, क्योंकि वो अलीना की पढ़ाई की लगन से अच्छी तरह वाकिफ था। वो शादी के बाद भी किया जा सकता है, बेपरवाही से कहते हुए अलीना ने यकदम अपनी जुबान दांतों तले दबाई। मगर अब कोई फ़ायदा न था, तीर कमान से निकल चुका था। श्यान की चमकती और मुस्कुराती नज़रों ने इसे इतना नर्वस कर दिया था कि वो अपनी कलाई छुड़ाकर तेज़ी से नीचे की तरफ दौड़ गई, जबकि श्यान दोनों हाथ अपने बालों में फेरता हुआ आहिस्ता से मुस्कुराता हुआ इसे जाता देखता रहा। इसे यकीन हो गया था कि ज़िंदगी ने इसे इसकी तवक्कुआत से बढ़कर खूबसूरत नेमत से नवाजा था।